Welcome, friends. Again, here, this is the gate coach, myself PV Jain and Mr. Ankush Gupta. Yeah, you know us. We are continuously streaming the video. This is our third video. If you want to see the previous video, you can go to the same channel and you can watch our videos, right? Today's topic is how to maximize marks in the semester exam and why this is important. This is important for those people that are doing their BTech or they are appearing for their semester exams because the examinations, semester exam marks are also very important, especially for the private companies. Some of the companies they say that there should not be any backlog. Like earlier, the L&T was having this condition. A number of other companies they check that in every year you are maintaining the first division or not, or your score is 65% plus or not. That's become very important. I'm not saying that your score is not good, then you are not a good student, but it becomes very important while you are going to appear in any of the interviews where they check your mark sheet. Even in some of the PSUs, they check your mark sheet, and that makes a very good impression. That's why semester exam marks are also very important. Even you are performing very well in the competitive exams, right? So moving further, coming to the point directly, the first step is the resources. Resources means how you should start, what things you should have for getting good marks in the examination. वो चीजें तो आपके पास होनी चाहिए ना जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकें. तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव syllabus. You should have syllabus because why you need syllabus? Because this is semester exam and the book may be this much thick, but the part of the syllabus is this much only, right? So you have to prepare that those chapters only those are in your syllabus. You should not go through whole book, right? Here we are talking about maximizing marks, not the knowledge, right? So maximize marks. What you have to do? केवल वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं. तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मालूम होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, राइट? एंड इम्पोर्टेंटली आपको यही मालूम होना चाहिए कि वो चैप्टर्स कौन कौन सी बुक में अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ आपको मिल पाएंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट? ओके. Yes, sir. And as sir told you about these things, and the third important thing is information of the books. Okay. Generally, what happens, the faculty who is discussing the things, especially in the sessional exams, okay, the books are referred by the professors, the faculty who is discussing those subjects, they have the tendency most of the time to include the questions from the books, from the reference books in their sessional papers. Okay, so that's why it is very important for us to solve at least the solved examples of those reference books. Plus, if you can solve the unsolved questions, then that would be better. Okay, and previous year questions also give us the idea about how you have to prepare the question, up to what extent they can ask the things. Okay, the depth of the question basically. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बुक्स में सॉल्व एग्जांपल्स जो आपके रिलेवेंट हैं उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो, जो रिलेवेंट नहीं उन्हें आप इग्नोर भी कर सकते हो. Yes, sir. In fact, that is a age old technique. We have also followed this technique during our NIT semester exams. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो होना ही चाहिए, राइट? आपको पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है एग्जाम का, कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, एंड इम्पोर्टेंटली आपको पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट? कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आता है और अगले में ये आता है, और सेमेस्टर में आता है, इवन में आता है, ये भी हमें मालूम होता है. तो वी कैन टारगेट दोज एरियाज. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बगैर तो बात ही नहीं बनेगी. एंड एवरी लाइब्रेरी is having those question papers, right? Even nowadays on the college website also those question paper are available. तो वो question paper जरूर देखिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि how tough they are asking in the examination and what area they are targeting. That becomes very important. So syllabus, previous year question paper, and the books that is generally followed by your teacher and by the other your seniors. So seniors may give you idea which book is important for examination and which book will help you to get maximum marks. So talk to the seniors also. That is very important, right? Moving further. This is the action. Now you have got the resources. The second important thing is you have to take action. With resources, without action, nothing will happen, right? So the first thing, find a toughest subject, right? You know the proverb, eat the biggest frog first.
जो सबसे टॉप सब्जेक्ट है सबसे पहले वो तैयार करके खत्म करना, राइट। एंड इन एवरी कॉलेज दैट इज फेमस, EMT सबसे ज्यादा टफ है, राइट। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा बैक आती है, राइट। M3 में सबसे ज्यादा बैक आती है, दैट इज मैथमेटिक्स थर्ड, दैट इज वेरी फेमस, राइट। इन एवरी कॉलेज की ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ सबसे टफ होता है और इसमें सबसे ज्यादा बैक आती है, इसमें बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। लेट प्रिपेयर दैट फर्स्ट, सबसे पहले वो प्रिपेयर करके खत्म कीजिए और इससे ये आसानी हो जाएगी कि आप कंफर्म हो जाएंगे कि बैक तो नहीं आने वाली, आपके अच्छे मार्क्स इसमें आ जाएंगे, बाकी इजी सब्जेक्ट्स आप इजीली तैयार कर पाएंगे। कभी भी जो टफ सब्जेक्ट है उसको बाद के लिए नहीं छोड़िए, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ट्राई टू ट्राई टू डू दैट फर्स्ट, सबसे पहले करना है उसको, और उसके बारे में उसके अंदर चैप्टर्स में क्या करना है सर, चैप्टर्स में क्या करना है, लाइक जैसे सर ने अभी सब्जेक्ट्स का नाम लिया, थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिक्स 3 एंड ऑल दिस। तो सब्जेक्ट्स में जैसे थर्मोडायनेमिक्स है फॉर एग्जांपल, द थर्मोडायनेमिक्स 2, ओके। इन आवर कॉलेज, इन माय टाइम, people used to think like thermodynamics 2 is the tough subject because हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने अच्छा पढ़ाया था, पर उन्होंने थोड़ा हाई लेवल पे हमें पढ़ाया था और हमें वो चीज इतनी समझ में आई नहीं थी। द रीजन वाज हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स 1 स्ट्रांग नहीं था एट दैट टाइम, तो इसलिए थर्मो 2 हमें समझ में नहीं आया। बट हमें उन्होंने एक चीज बताई थी लास्ट में कि जो इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है, अगर आप अपने सिलेबस में देखो, जनरली सिलेबस इज डिवाइडेड इन 5 यूनिट्स और 6 यूनिट्स। तो हमारे थर्मो में लास्ट के 3 यूनिट्स इजी थे, स्कोरिंग थे, और उसी वजह से हम थर्मो के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो सेम थिंग वी आर सजेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, इफ यू फाइंड एनी सब्जेक्ट डिफिकल्ट और टफ, ओके, जनरली जरूरी नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड के लिए टफ हो तो आपके लिए भी टफ होगा, पर जो आपके लिए टफ है, तो हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 और 3 यूनिट्स होती हैं जो इजी होती हैं, स्कोरिंग होती है। तो फाइंड दोस स्कोरिंग यूनिट्स एंड देन यू कैन प्रिपेयर देम, ओके। उनकी हेल्प से आप अपने स्कोर को, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो सेमेस्टर एग्जाम्स में, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज मेक क्लास नोट्स। तो जो भी चीजें आप क्लास में कर रहे हो, ऑब्वियसली अटेंडेंस तो है, मिनिमम 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया कॉलेज में होता है, हमें जाते ही हैं। तो आप जब क्लास में जा ही रहे हो तो क्लास नोट्स बनाओ, और साथ में अगर पॉसिबल हो तो जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं उनसे भी आप उन पॉइंट्स में इंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स में। अब रेफरेंस बुक्स देखो, एक तो आपके कॉलेज के प्रोफेसर आपको सजेस्ट करेंगे, एक आपके सिलेबस में होती हैं, दे कैन बी डिफरेंट, एंड अदरवाइज generally what happens, though the book suggested by the university papers, syllabus or the professors, हमें sometimes उन बुक्स से समझ में नहीं आता कुछ सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ ऐसी रेफरेंस बुक्स चाहिए अपने सब्जेक्ट्स के लिए जो इजी हो, जिनमें इजी लैंग्वेज में चीजों को एक्सप्लेन किया हो, फॉर बिगिनर्स, लाइक यू आर लर्निंग दैट सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप हमारी मेल पर हमें मेल भी सेंड कर सकते हैं। आपको मेल आईडी पता ही है, अदरवाइज वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो हम आपको एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स भी सेंड कर देंगे आपके इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एज अ बिगिनर आप कौन सी बुक सजेस्ट फॉलो कर सकते हो। नाउ सर, do solve examples, do not read it. That is the very bad habit of we engineers, right? We are having the habit to study on the bed. हम बेड पे बैठ के पढ़ते हैं आराम से, और न्यूमेरिकल भी हम पढ़ लेते हैं, हमें लगता है ऐसा करना हमें याद रहेगा, राइट। बट व्हाट हैपेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू हैव नॉट सॉल्व्ड इट बाय योर ओन हैंड, खुद बनाकर नहीं देखा है तो क्या होता है, हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा था, करना क्या था, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन दोबारा करना था या करना क्या था, राइट। तो अगर आप उसे थोड़ा आलस कम करें, है ना, और खुद सॉल्व करके देख लें हर क्वेश्चन को कम से कम एक या दो बार, तो दैट विल कंफर्म दैट कि आप एग्जामिनेशन हॉल में उसे आसानी से कर पाएंगे। तो दिस इज, डू नॉट रीड इट, जस्ट सॉल्व इट बाय योर ओन हैंड। पेन पेपर लीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए, जैसे आसानी से कोई प्रोग्रामिंग है, कुछ भी है, उसे खुद से करके देखिए बजाय पढ़ने के, राइट। पढ़ना तो है ही आपको, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन जहां पर प्रैक्टिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, जहां पर कोई ऑपरेशन है, कोई फॉर्मूला है, उसे अप्लाई करके खुद से एक बार देखिए, सो दैट यू विल बी एबल टू do that in the examination hall and write the formula at one place, whatsoever the formula you are using, right। एक सब्जेक्ट का फॉर्मूला एक जगह कॉपी कर लीजिए, जो लास्ट में आपको रिवाइज करने में या उसे यूज करने में आपको आसानी होगी, और आप उसे लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाना था। एंड मेक द राइट द कंडीशन आल्सो, on this condition you have to use this particular formula, on this condition you have to use this particular formula, and for all 5 chapters or the 6 chapters of your syllabus, make a small copy and write all the formulas at one place. That will be very handy, and that will help you a lot, believe me. Yes. एंड फॉर्मूला नोट जो सर ने बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलोंग विद द फॉर्मूला नोट्स, व्हाट यू कैन डू,
अगर आप अपने क्लास नोट्स बना रहे हैं तो आप उनसे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो फॉर द रिवीजन बिफोर द एग्जाम. एंड study regularly, no last minute rush, okay? Because what happens generally till 12th we used to study daily, at least हम अपना होमवर्क तो डेली करते ही थे, तो 1-2 घंटा तो हम अपना खुद से सेल्फ स्टडी के लिए निकालते थे. पर बीटेक में आने के बाद हमें पता चलता है कि लास्ट वीक लास्ट नाइट स्टडी से भी एग्जाम में ठीक मार्क्स आ जाते हैं. बट वो ठीक मार्क्स ही आते हैं. अगर हमें मैक्सिमाइज करना, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, तो आइडियली तो डेली पढ़ना चाहिए. पर अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट वीकली ऑन वीकेंड्स या फिर हफ्ते में 2 या 3 बार तो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी वो पुरानी हैबिट डेली स्टडी की दोबारा डेवलप कर पाएंगे. और एग्जाम में ऑब्वियसली आपको फिर लास्ट मिनट में पैनिक मोमेंट्स नहीं आएंगे कि यार मुझे इस टॉपिक का नोट्स नहीं मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं, अपने बैचमेट्स को कॉल कर रहे हैं, या उस टॉपिक का नोट्स ना आए, सर ने क्या लिखवाया था, वो करने की नीड नहीं होगी. ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अवॉइड द लास्ट मिनट रश एंड बी कंसिस्टेंट. See, the last night habit या फिर 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करना, that happens in engineering college, right? And we know that there is college fairs, there are a number of other activities, and the college is not only about learning engineering, it's about improving your personality also, that we understand. But the thing is, at the end आपको एग्जाम भी पास करने हैं, तो थोड़ा पहले से, जितना हम लास्ट मिनट में करते हैं उससे थोड़ा पहले करना शुरू करेंगे to get a better result. Definitely होगा ही ऐसा, right? Moving further, and this was the action that we have talked about before the examination, but equally important, action inside the examination hall. You have prepared well, done everything well, and you have reached to the examination hall. पहुंच गए examination hall में, and the question paper is up to you, right? So first of all, first thing you should do is, you should go through the question paper at once. एक glance देखिए, 30 सेकंड 40 सेकंड 2 मिनट में एक बार पूरा पेपर पलट कर देखिए, क्वेश्चन पेपर पूछा क्या गया है. Sometimes it happens that the first question or the questions on the first page are very very tough, and you started from there and become very very nervous. आपको समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, right? And that becomes a pathetic condition. तो हो सकता है कि अगले पेज में या लास्ट पेज में इजी क्वेश्चंस और वहां से शुरू करें, फिर आपका मोटिवेशन बन जाए और आप करने लग जाएं. तो एक बार, अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट है, जब क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो आपको लेंथ का पता चलता है कि इतने क्वेश्चंस करने, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इतना टाइम इसमें लग सकता है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बड़ा इजी हो जाता है कि आपको कितने टाइम किस क्वेश्चन को लिखने में देना है, राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप क्वेश्चन पेपर देख लें कि क्या पूछा गया है और उसके हिसाब से आप काम कर, राइट? एंड नो ईगो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अ पर्टिकुलर टॉपिक वेरी वेल. आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और उस पर ही क्वेश्चन आया और आपको लगा ये तो मैं कर ही लूंगा, right? But what happened once you started solving on that, you're not able to prove it, not able to get the answer, and you stuck to that question. आप लग गए ये कैसे नहीं होगा बॉस, ये तो करके ही जाना है. And that has taken 30 minutes, 40 minutes, 1 hour. अरे भाई क्या कर रहे हो, उस क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स ही है. लीव इट, डू नॉट टेक इट ऑन द ईगो, मूव फर्दर, आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन करना शुरू कीजिए. हो सकता है दूसरा क्वेश्चन करते हुए लास्ट तक को कहीं ना कहीं याद आ जाए क्या करना था, यू एबल टू डू दैट. बट taking one question for 1 hour or 1.5 hour is not justifiable किसी भी केस में, राइट? तो आप बिल्कुल भूल जाइए, जो आपने किया हुआ है अच्छी बात है, आप कर लेंगे, अच्छी बात है. नहीं हो रहा है, दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़िए. एग्जाम पास करना, अच्छे मार्क्स लाना ज्यादा जरूरी है बजाय उस क्वेश्चन से लड़ने के, राइट? एंड मेक नीट डायग्राम्स, यूज कलर पेन्स. सी एवरीबॉडी फील्स बेटर अगर आप साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे, राइट? एंड डायग्राम एक्सप्लेन्स 5 टाइम्स बेटर देन द वर्ड्स, राइट? तो अगर आप अच्छे सुंदर डायग्राम बनाते हैं और एग्जामिनर को वैसे एक्सप्लेन करते हैं इंजीनियरिंग वाले स्टाइल में, राइट? ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स. तो आप जो हैंड डायग्राम बनाते हैं उसे साफ सुथरा बनाइए, प्रोपोर्शनेट बनाइए, कलर पेन्स का यूज कीजिए, उसे सही से लेबल कीजिए, राइट? दैट जहां पर भी मौका हो आपको डायग्राम बनाने का, वहां डायग्राम जरूर बनाइए, राइट? That will give you very very good marks and very good impression in the mind of examiner also कि इसे चीजें समझ में आई हुई हैं और ये उसे रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट? सो मेकिंग डायग्राम, ब्यूटीफुल डायग्राम, और कलर पेन्स भी यूज करें. रेड कलर अलाउड नहीं है, बाकी कलर्स यूज करें. अगर आपको ऐसा है आपके यूनिवर्सिटी में कि आप एक ही कलर की पेन यूज कर सकते हैं तो उसी के डिफरेंट वेराइटीज रखिए, कुछ बोल्ड पेन्स रखिए, कुछ सॉफ्ट पेन्स रखिए, पेंसिल यूज कीजिए, बट मेक डायग्राम्स एंड रिप्रेजेंट दैट विल गिव यू वेरी वेरी गुड आइडिया. ओके, and along with the diagrams you can also include the examples, like in any question while you are writing the answer, if you find any interesting example or you think like this is very important example, है ना,
तो उस एग्जाम्पल्स को जब आप वहां मेंशन करो तो उसे स्पेशल हाईलाइट करो. यू कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स अराउंड दैट एग्जाम्पल सो दैट क्या होता है ना, यू नो दैट इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनर के पास जब बाद में आंसर शीट्स नहीं है, इतनी सारी शीट्स होती है, उन्हें चेक करने के लिए लिमिटेड टाइम होता है. तो सम टाइम इट में माइट हैपन कि उन्होंने ठीक से पूरी आंसर आपकी रीड नहीं करी. तो जो अगर आप इस तरह से हाईलाइट करोगे ना तो उनका इंप्रेशन उस पर जाएगा. तो डेफिनेटली ही विल गेट टू लुक ऑन दैट आंसर. ठीक है, और आप गेट इंटरेस्टेड एंड आपको ज्यादा मार्क्स देंगे. तो ये डायग्राम्स, एग्जांपल्स, दीज हाईलाइट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. तो जितना ज्यादा आप फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स इंक्लूड करोगे अपने आंसर्स में, थ्योरेटिकल आंसर्स में ऑब्वियसली, दैट वुड बी बेटर फॉर यू. एंड अटेम्प्ट द बेस्ट आंसर फर्स्ट. क्या होता है ना, जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक प्रोवर्ब है, फ्रेज है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो जनरली दिस हैपेंस. एग्जामिनर पे ऑब्वियसली इतना टाइम सम टाइम नहीं होता है. तो आपके पास क्वेश्चन पेपर आपने देखा स्टार्टिंग में, जैसा सर ने बताया, उसमें 10 क्वेश्चन आपको करने हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपको 7 ही आते हैं. ठीक है, आपको समझ में आ गया इसमें से ये 7 क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे से आते हैं, 3 क्वेश्चन नहीं आते. तो फर्स्ट डू दो 7 क्वेश्चन प्रॉपरली विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, जो भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो सब करो. और बाद में जो 3 क्वेश्चन आपके नहीं भी आते ना, तो उन्हें आप अच्छे से मतलब उनके लिए आपको क्या करना है सर आपको बेटर बता पाएंगे. Right. Okay. So even you know the little, right? It means a question is there. You do not know much about that. You know only the formula. Do not hesitate. Write the formula and explain every variable of the formula there. Right? You do not know how to solve it. कोई बात नहीं. जितना मालूम है उतना लिखे. You know only one part of the question, half part of the question, write that, right, and explain it. जितने अच्छे से आप कर सकते हैं उसे करके, ये मत सोचिए इसका तो मुझे पूरा मालूम ही नहीं है. अरे कोई बात नहीं, 10 में से 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा बस. तो आप जितना आता है उस क्वेश्चन के बारे में लिख कर आइए. पेपर खाली नहीं छोड़ना है आपको. जितना भी आता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आता है, डेफिनेशन ही आती है, वो लिख करके आइए. दैट विल फेच यू एटलीस्ट सम मार्क्स, राइट. अगर 10 मार्क का है और आपने 1 मिनट लगाया, आपको 2 मार्क ही मिल गए, 1 मार्क ही मिल गया, दैट इज वेरी गुड. कुछ तो मिला, खाली तो नहीं गया. उतना आपको नहीं मिलता तो नुकसान ही होता पूरे का, तो आपको कुछ तो मिला. एंड हैंड राइटिंग शुड बी गुड. एवरीबडी वांट्स टू रीड. पढ़ते वही आंसर से हम जहाँ पर हैंड राइटिंग अच्छी हो. हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तो फिर आपको एवरेज मार्क्स दे दिए जाते हैं अगर आपने अच्छा भी लिखा हो, राइट. सो दिस एडवाइजेबल कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, है ना. शुरू से ही स्पीड एक समान रखिए. लास्ट में क्या होता है, लास्ट पेजेस में हैंड राइटिंग ऐसी हो जाती है या मुझे खुद भी नहीं पढ़ पाते, एग्जामिनर कहाँ से पढ़ेगा, तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, राइट. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू मे रिपीट द पॉइंट. दैट्स व्हाट, दैट्स अ ट्रिक. लाइक देयर इज अ क्वेश्चन और उसमें आपको 10 पॉइंट्स का आंसर करना है ना. 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 आपके स्टैंडर्ड 10 पॉइंट्स हैं. लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर हो जाता है ना, आप तो रात को पूरी रात जग के जाते हैं, नाइट आउट. सो समटाइम इट हैपेंस दैट कि आप एक पॉइंट भूल गए, राइट. तो आप एक पॉइंट भूल गए, अब क्या किया जाए, आपके तो 9 पॉइंट्स हो रहे हैं. तो आप क्या कर सकते हैं कि 10 नंबर डाला और जो सेकंड या थर्ड पॉइंट पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, यू कैन रिपीट दैट पॉइंट. एग्जामिनर उसे पकड़ भी लेगा तो उसे लगेगा कि शायद धोखे से रिपीट कर दिया है, 9 ही मार्क्स देगा. लेकिन अगर ज्यादातर ये होता है कि एग्जामिनर से इतने लंबे आंसर उसमें भूल जाता है कि आपने कहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड दैट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 90% or more you'll get marks for all 10 points, though you know only 9, right. That is one of the trick, right. So moving further, and this is some other important things. Examination hall में क्या करना हमने आपको बताया, right. This is about sectional and practical viva exams, right. About your attendance and try to extract questions from the others. Say these 2 points are connected, sectional and practical viva exams, and try to extract questions from others, right. जब आप सेशनल या प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए जाते हैं, वाइवा एग्जाम्स के लिए खास करके, so what happens is your they ask, there is a batch of 80 or there is a batch of 50 or there is a batch of 40, and they will call you either a single. Generally they do not call single, they call it in a pair or 3 students at a time. कभी कभी ऐसा भी होता है कोई एक्सटर्नल आया हुआ है और उसने एक ही स्टूडेंट्स को बुलाया और they will start asking questions, right. इंपॉर्टेंटली सेशनल एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे कॉलेजेस में 40 से 50% मार्क्स सेशनल प्रैक्टिकल के होते हैं. आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स बाकी के 50 होते हैं. तो अगर आप यहाँ स्कोर अच्छा करेंगे तो आपका आधा काम तो ये हो जाएगा, राइट. एंड दैट इज क्वाइट इजी. तो आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो जब आप सेशनल प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाए, पढ़ करके जाइए जिस एग्जाम का वाइवा है, राइट. ब्लैंक बिल्कुल मत जाइए, बेसिक यूनिट्स आपको मालूम हो, एंड इम्पॉर्टेंटली थोड़ा पहले पहुंचिए, राइट.
Generally, they call students in alphabetic order or according to roll numbers, and whomsoever is coming out, try to extract questions from them. पूछिए कि आपसे क्या पूछा गया. करेक्टली स्टूडेंट से तो हर एक से अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होंगे, राइट. एंड जो क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं और खासकर जो क्वेश्चन का आंसर वो नहीं कर पाए, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिपीट दैट दोस क्वेश्चंस. तो आप क्या कीजिए, उनके आंसर्स पता करने की कोशिश कीजिए और उसको प्रिपेयर करके आप अंदर जब पहुंचेंगे, हो सकता है आपसे वही क्वेश्चन और आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर दे दिया, to get very good marks. That's how you will be able to get good marks in the sessional and practicals, right? प्रैक्टिकल क्लासेस में अंकुश सर ने जैसा आपको बताया कि जाएं जरूर, क्योंकि इंजीनियरिंग का बेसिस ही प्रैक्टिकल है. थ्योरी पढ़ के कोई इंजीनियर आज तक नहीं बना, राइट. एंड अटेंडेंस सर. प्रैक्टिकल से मीनिंग ये है, जैसे आप से जनरली व्हाट हैपेंस आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक, इफ यू गो फॉर हायर स्टडीज और जॉब प्लेसमेंट्स और एनी अदर इंटरव्यू इन पीएसयूज और प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट सेक्टर एनीवेयर, so most of the time they ask the questions from your BTech projects, the practical things only. So इसीलिए कॉलेज में अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं भी है ना, तब भी ऐसा होता है जनरली, सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं, हमें 5 अच्छे लगते हैं, एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा, बट उसकी लैब है, तो आपको लैब सीरियस होके करनी है. जितना आप लैब का वर्क सीरियसली करोगे उतना ज्यादा आपके लिए लास्ट में वाइवास, प्रैक्टिकल वाइवास प्रोजेक्ट में इजी हो जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन योर बीटेक, इन योर हायर स्टडीज और जॉब इंटरव्यूज, ठीक है. तो वहां पे आपको फिर ज्यादा सोचना नहीं, अलग से प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती है. Okay. तो अटेंडेंस में एक बात और कहना चाहूंगा, इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली, टीचर नोज यू, राइट. अगर आप कभी कभी क्लासेस में जाते हैं, टीचर आपको नहीं जानता. आई एम, यू आर रेस्पेक्टिंग द टीचर्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, राइट. तो जब आप टीचर से डेली उसको विश करते हैं, मिलते हैं, क्लास में बैठते हैं, उसे मालूम है रेगुलरली क्लास में आता है और अच्छा स्टूडेंट है, इवन यू आर नॉट स्पीकिंग वेल इन द वाइवा, आपने अच्छे आंसर्स नहीं किए, फिर भी आपको एवरेज मार्क्स दे देता है, और आपने अच्छा एवरेज किया तब तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, और आपने अच्छा किया तब तो अच्छे मार्क्स मिलने ही है. तो मेंटेन वेरी गुड रिलेशन विद द टीचर्स, राइट. टीचर्स हो सकता है वैसे भी आपको ज्ञान मिलता ही मिलता है, और हो सकता है कि इसका आपको इस तरह से ही फायदा मिल जाए, राइट. फर्दर, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, this is our mail id delhi.tdc@gmail.com. You can ask questions on the comment box also, and you can write us, you may write us. जब भी पूछना चाहें, जो भी पूछना चाहें, बुक लिस्ट चाहिए आपको, किस एग्जाम के बारे में जानना है, प्लीज मेल us, we'll definitely going to reply you. Thank you.